प्रॉफिट परसेंटेज कितना है आपके बिजनेस का? हम मोटा मोटा आज की डेट में 3,500-4,000 ऑर्डर्स पर डे। क्विक कॉमर्स से कर रहे हो, फ्री कैश फ्लो एक बार जरा समझा दो देसी भाषा। अकाउंट डैड का कॉल आया कि क्या पौधे बेच रहे, पौधे बेच के क्या होता है, 10-20 हज़ार रुपए की सेल होगी तो उससे क्या ही कमाएगा। फिर क्या बदला? सो वी बिकेम द टॉप 5 पार्टिसिपेंट्स इन ईटी पाराफाइडियस। दिल्ली में नारायण मूर्ति जो है अवार्ड देने वाले कैमरामैन जो ऐसे ही उधर खड़े हुए थे, उन्होंने उस फोटो को खींचा जिसमें मैं नारायण मूर्ति सर से वो अवार्ड ले रहा हूँ। वो और बड़ी बात तब हुई, इकोनॉमिक टाइम्स का हाफ पेज फ्रंट वो फोटो छाप दी। Somebody messaged him, तेरा बेटा है क्या? और ये नारायण मूर्ति के साथ है। Vijay came on board, the Paytm founder. I was going to pick up Shivani. Vijay was going out. तो he said क्या हो रहा है? He said यार लेट हो रहा है। मैं कहा चलूँ? तो मैं चल गया। That journey from Noida Sector 5 to GK, we got the funding. ओह, Whenever plants are around, makes people happy. तो जब आप स्ट्रेस होते हो तो आप हिल्स पे जाते हो, आप गोवा जाते हो। क्यों जाते हो? बिकॉज इट मेक्स योर माइंड स्ट्रेस फ्री। इस रूम में आप प्लांट्स भर दो, योर स्ट्रेस लेवल स्टार्ट चेंजिंग। ग्रीन कलर ही ऐसा है, ग्रीन कलर ही ऐसा है। Guys, welcome to another electrifying episode of the Akash Gupta Show, powered by 100 Unicorns, our new sponsor. India ke one of the top accelerators focusing on early stage startups. Backed by Venture Catalyst, a global startup accelerator. अब सभी startups के लिए एक बहुत ही काम की बात। ये अपने फंड 1 से अभी तक 145 startups में $100 million का इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। In industries like fintech, edtech, Web3 and deep tech. Some of their portfolio firms are Videoverse, Zingbus, Snapmint, TrueNative, BlueSmart, and even आपका अपना Zip Electric. And now they are on to their second fund where they are looking to invest $200 million in 200 startups this time in sectors like D2C, Agritech, SaaS, and FinTech. So if you're a startup and you're looking for funding, then you know who to reach out to. Awesome. Welcome to another show of the Akash Gupta Show. This is powered by 100 Unicorns. Who's one of our investors also, by the way. And today is very interesting because I think I'm again meeting a very good friend. We meet in family settings quite a lot. We've been as you know, parents almost at the same age of our daughters, right? And we talk a lot about life. But I think I've never talked about your life, your business. We just talk about life and very less business. But today I would love to know more about Anu. And guys, this is Anu Grover. He is the biggest plant seller of the country. Can I say that? Yeah. The biggest plant seller of the country, building his business for the last 14 years. That's known as Nurturing Greens. Great friend. Welcome, Anu. Welcome Yes, to thank you. the Akash Gupta Show. Yes, I'm seeing this, and congratulations for what you have done and sharing this knowledge to the world. I think a lot of people will benefit from the Akash Gupta Show. Absolutely, यार. So I think ये मैं बताता हूँ मैंने क्यों बनाया, because one I was thinking that as founders हम कुछ करते हैं but we are always so busy and you want to give back. You can give money, you can give some, sponsor some dinner or lunch for some, but the biggest give back today is the world of knowledge. और मैंने कहा अगर एक तो ये वेस्टेड मोटिव था कि लोगों को सिखाते हैं, दूसरा वेस्टेड मोटिव था कि खुद को भी बहुत कुछ नहीं आता। तो दिस नाइट टाइम इज़ माई लर्निंग पॉट। आफ्टर 8 आई से कि अब मैं सीखता हूँ, या तो पॉडकास्ट सुनता हूँ या पॉडकास्ट कर ही लेता हूँ। ग्रेट। सो अनु, आई थिंक आई हैव नेवर नोन योर चाइल्डहुड। हाउ वाज इट? क्या करते थे? कैसे किड थे? नॉटी थे? बढ़िया थे? कैसे, मतलब थोड़ा बताओ। So I'm born in Lucknow और नवाबों के शहर में पैदा हुआ था। I am from a business class family. मेरी जितनी generations को मैं जानता हूँ, my grandfather and his father, they're all entrepreneurs. So I think entrepreneurship is in my blood. और जब छोटे थे तो एक normal middle class था. Of course, I've been given the best of what एक middle class family एक माँ बाप अपने को बच्चे को देते हैं. And since my father was an entrepreneur, I've seen a lot of ups and downs because usually entrepreneurs are risk takers. So मैं रात को खेल के आऊँगा तो पता था गाड़ी बेच दी, या अगले दिन I'll come and say, we have a new house. You've seen all that? And I've seen all that ups and downs, and that's why अगर bootstrap में अगले दिन सैलरी देने को नहीं होती तो मेरे हार्ट बीट्स इतने पंप नहीं होते, तो I know something we will manage because I've seen those ups and downs in my life. But we've
broadly India and especially our family, we've been there was scarcity of money. Like I was not born in abundance, right? तो था but कम था. Obviously चाहत ज़्यादा थी. तो my equation with money has been always rebellious. तो वो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला ऋतिक का थॉट था कि यार 40 तक नोट छापने हैं और फिर रिटायर होना है, फिर एंजॉय करना है. ये था. हाँ, of course. So But your dad retired at some age? So 2002 tak he was doing really good. The business was flourishing, and of course he saw his ups and downs from 1980s to 2000 earlys. And then we were three siblings. My sister, she's a doctor, you know, Pooja. Now she's an entrepreneur. My brother, elder brother, he's a company secretary. He is also now an entrepreneur. And I was one guy where dad had a hope कि यार ये मेरा आगे चलाएगा मेरे बिजनेस को. But just like every... क्या था business? So he was into footwear industry. We were into manufacturing of very low-end जूते per se. And तब मुझे लगता था यार मैं क्या इतने सस्ते जूते मुझे नाइकी खरीद बेचने हैं. And you know, so obviously, and then the aspirations were not matching. उनके टर्म्स, उनके करने के तरीके, मेरी सोच, मेरे करने के तरीके, जो एक... But try किया थोड़ा बहुत. हाँ, so 12th के बाद ग्रेजुएशन कर रहा था. ऑफ कोर्स ये होता था कि आ जाओ संडे को, या यू नो मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ तो वहाँ ज़्यादा पढ़ाई होती नहीं थी. सो या तो लड़कियाँ बीकॉम किया. सो या तो गर्लफ्रेंड्स होती थी या फिर काम होता था. तो उस पूरे टाइम में असली में एंटरप्रेन्योरशिप एक्चुअली मैंने तभी सीखी है. जब मैं छोटा था तो मुझे याद है कि हमें रात को एक बोरा आता था, उसमें नोट गिनने होते थे. क्या बात कर. तो माई जॉब वॉज कि आई गेट सम बंडल ऑफ इट इफ आई पुट ऑल 1s के एंड 10s के एंड 100s के अलग अलग अलग. एंड आई सीन मनी फ्रॉम देयर. आई यूज्ड टू टेल डैड कि यार ये तो ये है. एंड देन ही यूज्ड टू हैव दिस लेजर जिसमें वो अपना ओम बना के रखते थे ना, रेड कलर. बोरियों में पैसे आते थे. इतनी बड़ी बोरियां नहीं, बट छोटी बोरियां. एंड आज के 2000 वाले नोट नहीं थे, तब तो 1 रुपये 10 रुपये वाले 100 रुपये वाले नोट होते थे. बट देन यू नो ही टॉट मी व्हाट फ्री कैश फ्लो वाज, बिकॉज मैं उनसे पूछता था कि पापा ये नोट तो हैं, ये घर आ जाते हैं, बट आप रोज़ लिखते हो उसमें ये 1 लाख रुपए की सेल हुई तो ये लेना है, तो इसे ये कभी आने वाली नहीं है, ये बुक्स में है. तो जो घर पे आता है वो धंधा होता है. एंड दैट व्हाट टॉट मी व्हाट फ्री कैश फ्लो वाज. ऑफ कोर्स उसके आज मॉडर्न स्टेटमेंट्स आ गए हैं, इट्स कॉल्ड फ्री कैश फ्लो. उस समय होता था कि घर पे जो पैसा आया है वो मुनाफा है और वो घर पे लेके जाना है, बाकी सब तो बिजनेस में रोटेशन में चलता रहेगा. सो ऑफ कोर्स दैट लाइफ आई हैव लिव्ड. आई लिव्ड इन लखनऊ. एंड देन जब थोड़े थोड़े पर लगने शुरू हुए, ग्रेजुएशन में आए, दुनिया देखनी शुरू करी, तो ये हुआ कि यार और पैसे कमाने हैं. बिकॉज आई वॉज ऑलवेज हैड दिस अंदर में इज्जत कि यार बहुत पैसे कमाना है यार, टैग दे के शॉपिंग नहीं करनी है. पहले होता था ना कि पियानो खरीदना है तो अच्छा 3 महीने बाद की 10 तारीख को खरीदेंगे, या बाइक लेनी है तो अच्छा अगले साल के बजट में या यू नो एक्स टाइम में डालेंगे. तो वो मुझे बहुत ही अपने आप को रोकता था. क्यों नहीं चाहिए, यू नो आई शुड बाय विदाउट लुकिंग एट द टैग्स. घूमने जाना है तो मैं सोचते हैं समर वेकेशंस आएंगी तो एक बार जाएंगे. तो भी माय विजन एट दैट टाइम वाज कि बनारस एंड भोपाल, राइट. सो आई वांटेड टू गो बियॉन्ड इन माय लाइफ. तो वो रिबल आई थिंक था और कुछ करना था बड़ा. तो वो अंदर ऑब्वियसली पैदा हो रहा था एज आई वाज ग्रोइंग अप. एंड देन graduation happened and then masters happened. Masters में I met Shivani in a train journey. Oh. We were both going to Christ College, interview देने MBA का, and we were in the she was coming from Chandigarh, I was from Lucknow. उसका ग्रुप अलग था, मेरा ग्रुप अलग था, and we just met. वो जब we met वाला Seriously, in the train? In the train, and I didn't exchange number, but जब वापस आ रहे थे तब फिर हम एक ही ट्रेन में थे और एक ही बोगी में थे. What a coincidence. What a coincidence. उसी दिन हम रात भर बात करी, और जब हम निकल रहे थे तब तक नंबर नहीं लिया था, तब ऑर्किड हुआ करता था. तो उसने मुझे ऑर्किड का लिंक दे दिया. अगर वो नहीं दिया होता तो शायद यू नो नाइसा वुड नॉट हैव बीन हियर एंड वुड नॉट हैव बीन मैरिड. बट या सो ग्रेजुएशन की
तब तक ये था कि डैड का बिजनेस, ही वाज लाइक कि ज्वाइन करो, व्हाई डोंट यू ग्रो दिस, बट मुझे कुछ बड़ा भी करना था। प्लस हर एक डैड और बेटे में जो खिंचाव होते हैं वो हमारे में बहुत थे, इन टर्म्स ऑफ हाउ ही सीज बिजनेस एंड हाउ आई वांटेड टू। उनको कंट्रोल करना था, मुझे उसे बड़ा करना था। तो इसको कुछ नहीं आता है, ये डुबा देगा। Which I think everybody who has grown this from zero and bootstrapped always has this fear कि अगली जनरेशन को पता नहीं है कितनी मेहनत से कमाया है ये, you know, तो They have that fear. ठीक है, आज एक नया वर्टिकल खोलना है या उधार ज़्यादा दे दो, you know, तो ऑब्वियसली उनको नहीं था। एंड देन फिलॉसफी मुझे लगता है कितना बड़ा कर लूँगा। टुडे आई गिव मी एनी बिजनेस एंड आई कैन ग्रो टू हंड्रेड्स ऑफ करोर्स, बट उस समय ऑफ कोर्स ट्राई किया थोड़ा टाइम, बट ये हुआ कि नहीं चलेगा। एंड देन आई सेड MBA करने जाते हैं, आई वांट टू मूव आउट ऑफ लखनऊ। तो बाहर गए, तो नोएडा आ गए, बिमटेक में मास्टर्स करनी शुरू करी। इत्तेफाक से जो लड़की मुझे ट्रेन में मिली थी वो एमिटी में आ गई, तो शिवानी से मिलना शुरू कर दिया, तो वहाँ गर्लफ्रेंड बन गई वो, और 2 साल उसमें निकलने शुरू हो गए। तो ये था। एंड देन 2009 में जब पास आउट कर रहा था तब था कि ठीक है, या तो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला, नौकरी करो, नोट छापो, और यू नो मेक लॉट ऑफ मनी। एंड दैट हैज़ बीन एज माई किड, दैट हैज़ बीन द पॉइंट दैट मुझे वो कमाना था। बट तब 2009 में ग्लोबल क्राइसिस हो गए। हाँ, नौकरियां नहीं लगी थी 2009 वालों की। मैं 2008 वाला था। तो मेरे जो पीछे वाला जो बैच था उनको तो अच्छे 10-12 लाख के पैकेज थे। मेरे पास जो पैकेज मिला था, आई थिंक सेल्स रेप का, सेल्स का था, और वो 30,000 का था पैकेज। 30 तो नहीं कर रहा मैं, आई डोंट वांट टू डू 30,000 रुपये की नौकरी, इतना तो मैं अपने बाप के साथ कह के कमा लूँगा। ऑफ कोर्स देन अपॉर्चुनिटी आई कि इंडियन और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को FHU आनियम, एक ऑस्ट्रिया की यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे 300 बच्चे ग्लोबल बिजनेस प्रोग्राम करने आते हैं, करीब 82 कंट्रीज से। तो मैंने कहा यार नौकरी तो लग नहीं रही है, और मैंने लोन भी लिया था इसके लिए, एजुकेशन लोन 4.5 लाख का, विच आई डिडंट टेल डैड। और तब तक मेरे और डैड के इक्वेशंस में थोड़ा सा तनाव शुरू हो गया। मेरे को खुद करना है, मैं नहीं लूँगा, खुद ही पैसे कमाऊँगा, नहीं लेना मुझे उनसे। तो एजुकेशन लोन भी मैंने खुद ही लिया था अपना ही नाम पे, बट उसके पैसे देने के टाइम आना शुरू हो रहा था, तो फटनी शुरू हो गई, तो पैसे तो है नहीं। तो बट तब ये अपॉर्चुनिटी आएगी, वो स्पॉन्सर कर रहे थे, तो मैंने कहा यार नौकरी तो मिलनी नहीं है, और मोराटोरियम दे रहा था SBI, और ये था कि मैंने दुनिया देखी नहीं है, इंडिया के बाहर गया नहीं हूँ, मैं चला जाता हूँ। अच्छा। तो आई वेंट देयर। आई थिंक दैट वाज अ बिग गेम चेंजर इन माय लाइफ। वो जो एक कुएं का मेंढक होता है जिसने अपनी सिर्फ एक दायरे देखे होते हैं, वो जब छलांग बाहर मारता है तो उसको दिखता है कि दुनिया और भी है। और वो मैंने 2009 में किया। जब मैं वहाँ गया तो मैंने कहा यार मैं क्या ही हूँ, एंड हम क्या ही हैं, और मेरी सोच क्या ही थी अभी तक, क्योंकि दुनिया तो बहुत बढ़िया है। अच्छा। And which country was this? दिस वाज ऑस्ट्रिया। Austria, yeah. So beautiful country. I was in Vienna and Graz almost a year. Work, मतलब दुनिया अलग है, रशियंस आए हैं, हम वहाँ वोट का पार्टी कर रहे हैं, उनके लिए दुनिया कुछ और है। So your eyes opened up. Eyes opened up. My scope of how I look at the globe and how I look at life changed. थोड़ा और बड़ा हुआ कि और बड़ा विजन करना है, बट एट द सेम टाइम ये भी आने लगा कि कुछ अच्छा करना है। लाइक माई पर्सपेक्टिव ऑफ जो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा वाला थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया कि पैसे कमाने हैं, बट मज़ा भी करना है, कुछ अच्छा करना है, इम्पैक्ट लाना है। फिर धंधे में कैसे? सो धंधे में इसलिए आया क्योंकि 2009 मई में मॉम डैड की एनिवर्सरी थी, और उस समय मैंने उनको एक बुके भेजा वहाँ ऑस्ट्रिया से, और रात को इत्तेफाक से कॉल करना था, नहीं किया, और 3.5-4 घंटा जो गैप था, तो मैंने कहा अगले दिन सुबह कर दूंगा। सुबह भी थोड़ा लेट हो गया, दोपहर तक जब मैंने कॉल किया तो माँ ने बोला कि वो तो फेंक दिया बेटा, रखना था क्या। ओह, इतना लेट हो गया। हाँ, तो मैंने कहा गर्मी है यार, मैंने कहा एक दिन भी नहीं चला, 2500 रुपये चले गए, उन्होंने तो ये बोल दिया कि फेंक दिया। तो मैंने कहा क्या बेकार गिफ्ट है यार ये, तो कुछ और होना चाहिए। तब तक मेरी एक क्रोएशियन फ्रेंड थी,
उसने अगस्त में मुझे मेरे बर्थडे पे एक प्लांट गिफ्ट कर दिया। और तब मैंने कुछ कुछ डॉट कनेक्ट होने लगे कि यार बुके देख से अच्छा गिफ्ट देखते हैं। तो स्टार्टेड गूगलिंग, यार इसमें तो 5 मिलियन सर्चेस आ रही हैं, तो मतलब बहुत बड़ा आइडिया होगा। बट इंडिया में देखा तो तब तक कुछ ऐसा किसी को था नहीं, गिफ्ट प्लांट वाज नॉट देयर। बट आई स्टार्टेड लर्निंग सम ट्रेंड्स कि फ्यूचर में bouquets will go down. You know, as more people will come, people will not want to give a bouquet. They will want to give something else and maybe a plant. You know, if you can create a great product, a beautiful looking product, people will want to give that. तब 22 साल का था, यार ठीक है ट्राई मारते हैं। और नहीं हुआ तो वापस ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। सेकेंड थिंग इज माँ बाप को सॉरी बोल देंगे और उनका धंधा ज्वाइन कर लेंगे। सो बस तब मैं आ गया वापस और 22 साल की उम्र में शुरू कर दिया, 23 साल की उम्र में This business. तब मैं वहाँ पे मैनेजमेंट कंसल्टेंट लग गई थी और मेरी 3.5 लाख की तब नौकरी थी इंडियन। उसमें मैं 2 ही महीने काम किया था। अच्छा। और वही मेरा सीड मनी बना था यहाँ आने के बाद इस बिजनेस। The first 2 months salary. द फर्स्ट 2 months सैलरीज 5 लाख मोटा मोटा एंड सब मिला मुलो के इधर उधर से। तो प्लांट्स का बिजनेस करूंगा ये तब सोचा। तब सोचा फादर का था शू बिजनेस, ऑस्ट्रिया में कुछ अलग देखी है और ऑस्ट्रेलिया पर्सपेक्टिव। में जॉब आ चुकी थी तब तक। So how did you start? खुद के पैसे मतलब ये 5 लाख लगाए तो प्लांट्स कैसे ढूंढने शुरू किए, क्या बेचना शुरू किया? सोचा था तब कि धंधा तो आसान से हो जाएगा। ऑफ कोर्स तब तक टिंडर पे इसको स्टार्टअप नहीं बोलते थे, बिजनेस बोलते थे। और जितना आजकल कूल है स्टार्टअप वर्ल्ड, ऑब्वियसली उस समय उतना नहीं था। सो 2009 में आया, थोड़ा बहुत तो लाइफ किया कि फिगर आउट करूँ मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। 2011 स्टडी किया, क्योंकि प्लांट्स के बारे में कुछ ज़ीरो नॉलेज थी। धंधे के बारे में पापा को देखा था, खुद नहीं किया हुआ था। तो ज़ीरो नॉलेज थी, दुनियादारी की ज़ीरो नॉलेज थी। तो तब लफंडा गिरी और यही सब बेसिक्स ग्रेजुएट जो कर सकता है बेसिक चीज़ें करी हुई थी। तो मैंने चलो ट्राई तो करें, रिसर्च करना शुरू किया। थोड़ी बहुत सेविंग जो वहाँ से बची थी वो थी। ऑफ कोर्स आई मेड अ लॉट ऑफ बिग डिसीजन, रॉन्ग डिसीजन इन माई लाइफ। आई थिंक इफ आई डू इट टुडे एंड इफ समबडी कम्स टू मी कि यार सर मुझे ऐसा ऐसा करना है, अब भाई कभी ना करना। सो फॉर मी एवरीथिंग स्टार्ट गोइंग रॉन्ग फ्रॉम दैट डे। From which day? डिसाइडेड टू स्टार्ट, Okay. क्योंकि धंधा आता नहीं था, प्लांट्स के बारे में पता नहीं था, पैसे थे नहीं, ठीक है, और धंधा करने निकल गए थे। तो कैसे होगा भाई? सो पहले ही 3-4 महीने में सैलरियों से और जो माल खरीदा उससे तो वो चले गए पैसे। अब माँ बाप के पास जा नहीं सकते क्योंकि ईगो थी। तो आई रिमेंबर एवरी टाइम आई यूज्ड टू कॉल दीदी, तो फर्स्ट थिंग शी यूज्ड टू से कि बेटा ट्रांसफ़र कर दिया, क्योंकि उसे पता था कि कॉल Oh. है तो उसको सैलरी देने के पैसे नहीं होंगे Really? और इसलिए कर रहा होगा। 2011 अक्टूबर आई शिफ्टेड टू शिवानीज हाउस बिकॉज सारे पैसे ख़त्म हो गए थे और जो रेंट दे था वो 1 महीना रेंट नहीं दिया था। तो ओनर ने कहा भाई निकल जा। तो पैसे भी नहीं थे और फिर उन्होंने कहा पैसे भी बचा लेते हैं। सो आई वेंट इनटू अ लिव इन विद शिवानी। लोगों ने बताया सही यार, ऑस्ट्रिया होके आया तो लिव इन कर रहा है। हाँ. And till a lot of time, I think 16, 17 people didn't know. I didn't have money to pay the rent even. तो फिर मैं उसके साथ रहता था। उस समय उसकी भी नौकरी उसी समय लगी, जो कि क्राइसिस था और ग्लोबल रिसेशन। उसकी पहली नौकरी 17,000 की थी। तो वो 7,000 मुझे देती थी, 10,000 में अपना खर्चा चलाती थी और अपने माँ बाप से 20,000 लेती थी। तो धंधा क्यों नहीं चल रहा था? धंधा बहुत छोटा था, 20-25 हज़ार की सेल थी। अभी शुरू ही किया था, घटिया प्रोडक्ट था, गंदा अगली सा प्लांट था, प्लास्टिक के पॉट में लेके आते थे, कोई खरीदता ही नहीं था। पहला क्लाइंट मुझे याद है गोल्फ कोर्स था नोएडा का। अच्छा, मतलब तुम B2B सेलिंग करते थे प्लांट्स की? रिटेल भी शुरू करते, उसके रेंटर को अंदर घुसने ही नहीं देता था मॉल में। उधर रेंट निकालो दे दो, रेंट के पैसे नहीं थे। तो पहला तो B2B शुरू किया कि भाई कॉर्पोरेट गिफ्टिंग कर लेते हैं, ट्राई मारते हैं हाथ पैर। तो आई रिमेंबर 180 पीसेस का गोल्फ कोर्स का उनका कोई टूर्नामेंट था। उन्होंने भी आके बेचारे का कुछ है नहीं पैसे, 22 साल का लौंडा है, ये इतनी दूर से ऑस्ट्रिया से एक्चुअली इसको दे देता हूँ। अच्छा. माई फर्स्ट ऑर्डर वॉज नॉट ऑन द प्रोडक्ट, मतलब मैंने खरीदा आज तक वो प्रोडक्ट, अगर मुझे किसी ने पिच किया होता तो वो इतना गंदा प्रोडक्ट था। बट उसने आई थिंक आउट ऑफ कर्टिसी, आउट ऑफ कि यार यंग बच्चा है, चलो ठीक है कर ले, दैट वॉज माई फर्स्ट ऑर्डर। वो हमने शिवानी के घर में रात को
पॉटिंग उसी के रूम के अंदर पॉटिंग करी, मिट्टी बोरे में लेके आए, पॉट किया. सो दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड. एंड धीरे धीरे मोहित शिप्रा मॉल का जो ओनर थे, his son, basically Mohit, I went to him. He was also that time 26, 27. ऐसे यार young लड़का है, बढ़िया है. So he gave me a free space. Store की. So my first store came in. But of course it's easy look, क्योंकि जब पैसा नहीं है और पता भी नहीं है कि करना कैसे है, so you keep pivoting and keep doing. अब पैसा उस समय वेंचर कैपिटल वगैरह नहीं था. नहीं था तब तक. तो Amazon India आया नहीं था, ऑनलाइन कुछ था नहीं. And you were just doing offline B2B sales Yes. of plants. Of plants. किसी से खरीदते थे? कहाँ से खरीदते थे? फार्म वाम से? लोकल नर्सरी से खरीदते थे और पॉट भी लोकल गंदे से प्लास्टिक के चावड़ी बाजार से लेके आते थे. बट वो भी नहीं मिलते थे लोगों को. And that was the need that you were solving. Yes, so we're solving for क्या gift plant कर लो, you buy and gift different. And of course the idea at that time was that can we replace bouquets with flowers. That was the first thesis. जब करना शुरू किया, ये सब होना शुरू हुआ, सेल इतनी हो नहीं रही थी, we started to get a customer insight that 90% of the decisions on gifting happens within 24 hours of the D-Day. मतलब Just 24 hours before 14 फेब को 90% भारतीय ऑर्डर करते हैं. मैन को 13 तारीख को याद आता है कि साला कल नहीं दी तो डिवोर्स हो जाएगा या गर्लफ्रेंड छोड़ देगी. तो उस दिन उसको कोई ऐसा ब्रांड चाहिए जो सेम डे नेक्स्ट डे डिलीवरी कर दे. और अगर 15 को किया तो उसका तो होगा ही, तुम्हारा भी जाएगा. तो वी रियलाइज यार ये तो सप्लाई चेन बिजनेस है, ये गिफ्टिंग बिजनेस है नहीं. ओके. अगर तुम 100 शहरों में इसको ला पाओगे या टॉप 10 शहरों में ला पाओगे और तब तुम इंटरसिटीज और तब तुम अगर ये ट्रांजैक्शन सेम डे या नेक्स्ट डे कर पाओगे तो बहुत से धंधा बढ़ा है. एंड दैट्स व्हाई फंड्स एंड पेडल्स चल रहा था. राइट, दे वर दैट टाइम डूइंग 200-300 crores. बढ़िया धंधा था बिकॉज कोई ऑप्शन नहीं था. राइट, मुझे आज अगर बुके भेजना है या मुझे कुछ भी देना है क्विक, तो मैं कहाँ से भेजूँ? मुझे अभी एकदम से याद आया, मुझे कल चाहिए, तब कोई ऑप्शन नहीं है उस समय. True. There was no e-commerce, there was no Zomato, Swiggy, Blinkit, Shipkit, कुछ नहीं था. Crazy days, है ना? Crazy days, right? So And it's just 10 years back. this is 10 years back, तो दुनिया ऑब्वियसली कहाँ से कहाँ जा चुके हैं. अभी तो हम मैजिक वर्ल्ड में उस पर भी बात करेंगे कि हाउ क्विक कॉमर्स हैज चेंज्ड आवर लाइफ. बट हाँ, वहाँ पे बुरी चीज़ें शुरू हो गई. दोस्तों ने बात करनी बंद कर दी. दारू में मिलते थे, पार्टी में मिलते थे, तो उनको पता था यार इसका क्रेडिट कार्ड मैक्स होगा, छोड़ दो भाई, इसको कंट्रीब्यूट नहीं करता है. तो दे स्टॉप्ड आस्किंग फॉर दैट. माँ बाप को भी लगने लगा कि यार ये क्या कर रहा है, पौधे बेच के कुछ होगा नहीं वैसे भी. कितने साल चला ये सब? आई थिंक 2-3 years of madness was there. अच्छा. How big was the team? 10 में my first employee was my Mali, and we were like 8-10 people struggling. उसको struggle से कर रहे थे. फिर क्या बदला 3 साल बाद? So कुछ series of incidents बदले. एक incident बदला जब हमने power of ideas में apply किया. So ET Economic Times अपना एक power of ideas चलाता था 2010. That was a big project. Again, जैसे आज Shark Tank है, उस समय का वो था. Where they will select the applicants. उसमें जब धंधा हो नहीं रहा था तो मैंने कहा यार कुछ होना तो है नहीं, चल अप्लाई कर देते हैं, ठीक है, और देखते हैं कि कुछ हो जाए. तो उस 17,000 एप्लीकेंट्स में वी गॉट सिलेक्टेड. यार बढ़िया यार, लोगों को पौधे चाहिए, इसका मतलब चलो कुछ और तो हो नहीं रहा है, ठीक है कर लेते हैं. हमने सेकेंड राउंड भी अप्लाई कर दिया. थर्ड राउंड में द टॉप 100 पीपल हैड टू गो टू IIM अहमदाबाद फॉर 3-4 weeks of this whole incubation. And then उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज डूइंग बेसिकली आपको फंड कर रहे थे, स्पॉन्सरिंग कर रहे थे. उसको जो है स्पॉन्सरिंग एक ग्रांट्स दे रहे थे बेसिकली टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एंड एंटरप्रेन्योर्स. Oh, this was year? 2010. 11 सॉरी. 11. Wow, long back. तो तब तक हुआ, हम हो गए उसमें, इत्तेफाक से सेलेक्ट हो गए. IIM अहमदाबाद जाने का मौका मिला. भाई और तो काम तो हो नहीं रहा है 12 में, सीख लेते सेल तो हो नहीं रही है, कुछ पैसे हैं नहीं, तो इससे अच्छा चले जाते हैं, फ्री टिकट है, रहने को मिलेगा, अच्छे लोग से मिल लूँगा. सो इंसिडेंट थिंग्स चेंज्ड व्हेन सो वी बिकेम द टॉप 5 पार्टिसिपेंट्स इन ET Power of Ideas. और उसमें Top 5 पहुंच गए. Wow. 15 लाख का ग्रांट था. Amazing. तो वो ग्रांट तो मिला, which was not as big a thing, but the bigger thing happened was उसको ताज दिल्ली में
नारायण मूर्ति जो है अवार्ड देने वाले थे उन 5 लोगों को। वो भी बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात उसके बाद हुई जब उस कैमरामैन जो ऐसे ही उधर खड़े हुए थे, एक सज्जन जी, उन्होंने उस फोटो को खींचा जिसमें मैं नारायण मूर्ति सर से हाथ मिला रहा हूँ और वो अवार्ड ले रहा हूँ। वो और बड़ी बात तब हुई जब अगले दिन सुबह उसके एडिटर को कुछ समझ में आया, उसने उसके फ्रंट पेज इकोनॉमिक टाइम्स का हाफ पेज फ्रंट वो फोटो छाप दी। Wow. And I think that was, You were a sensation. so that's a game changer for me because I had almost given up by then. सही में. क्योंकि every day that stress, you know, every day mom will call at 8 p.m. Or you will call your sister for the money. or for the money, and 8 बजे mom will call and there were just 3 questions in my life. पहला, बेटा खाना खा लिया? हाँ. बेटा दूसरा सब ठीक है? हाँ माँ ठीक है. Third question has killed me every night and I have cried almost every night what I remember of, because then she used to say कि पापा कह रहे हैं देख लो, कुछ और करना है क्या? And today when I have Naisa and we have our daughters, I know it was sheer out of love and care, but that time I felt that they didn't believe in me. Right? That time they believed that I'm a failure, या मुझसे नहीं होगा. तो मैं इतनी अपने अंदर की सेल्फ रिस्पेक्ट और अपना करेज खोजूंगा, मुझे खुद ही लगता था कि नहीं होगा. You know, तो उससे बाहर निकलने के लिए you need as an entrepreneur a lot of persistence, right? Lot of confidence on your end goal. You know, something which only you can see as a entrepreneur. Nobody, your wife, your girlfriend, your parents, your sister, nobody can see that. Even sometimes your co-founders also not, if they have not started at the same time. क्योंकि वो विजन तो तेरे आंखों के अंदर या तेरे दिमाग में है. Nobody can sense that. That's true. That's true. But दुनिया कैसे बदली? वो फ्रंट पेज पे आने के बाद हुआ क्या? मतलब ऐसा क्या हो गया यार? 6 बजे सुबह डैड का कॉल आया. I think almost 18 months back. He didn't talk to me for 19 months. Mom will talk and he will never call me because he was upset कि क्यों ये क्या कर रहा है, you know, क्या पौधे बेच. एनिमल वाला टाइप का था क्या वो जो मूवी थी? Your dad and your equation थोड़ी रिबेल बन गए. रिबेल बन गए थे and he was like यार क्या कर रहा है, मतलब यार ऑस्ट्रेलिया चला जा तू, तो वहाँ कर ले अगर तुझे मेरा नहीं करना है धंधा. कि क्या पौधे बेच रहा है, पौधे बेच के क्या होता है, 10-20 हज़ार रुपए की सेल होगी तो उससे क्या ही कमाएगा, क्या जिंदगी जिएगा. एंड ऑफ कोर्स आई कुडंट कन्विंस हिम द विजन ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू बिल्ड फॉर इंडिया और फॉर द वर्ल्ड. तो 6 बजे उनका कॉल आया सुबह. somebody messaged him कि यार इधर के अन्नू है क्या, तेरा बेटा है क्या, और ये नारायण मूर्ति के साथ है. तो उनको लगा यार नारायण मूर्ति के साथ हाथ मिला रहा है, इकोनॉमिक टाइम्स में है, तो कुछ तो कर ही रहा होगा. एंड दैट डे सेड चल ठीक है बताओ क्या करना है, क्या कर रहे हो. तो आई थिंक lot of emotional baggage came out of it, and that's one big thing for every entrepreneur, because if that is supported, then you can run. At least someone should back you. Someone should back In you your right? family. In some family. And वहाँ पे वो बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है. back नहीं भी है पैसे जगह से, बस ये है कि हम हैं, तू कर ले, जा जी ले जिंदगी. ये एक एंटरप्रेन्योर को चाहिए होता है. तो मेरे केस में आई थिंक राशि वाज दैट. व्हेनेवर आई वेंट टू हर शी सेड कर लेते हैं यार, ठीक है, क्या होगा, आज भी मैं कोई नया आइडिया कर लो यार. वो बोलती जरूर है कि कैसे होगा, नहीं हो वो पाएगा. सब अलग, वो आगे क्या वो सब हो जाती है सॉर्ट. सबसे पहली चीज ये होती है कि यार कोई है जो ये कह रहा है कि ठीक है जाओ. तो योर डैड डिड दैट. आफ्टर दैट यस ऑफ कोर्स. देन ही हेल्प्ड. तब तक मैं उस लाइफ में आ चुका था, नहीं मुझे नहीं चाहिए. तब ये 15 लाख भी आ गया था, तो सीड मनी भी आ गया था. एंड दैट चेंज लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज विजिबिलिटी मिल गई. वी रेज्ड अ फर्स्ट राउंड, सो वी गॉट वन एंजल हु इन्वेस्टेड जस्ट ऑन फोन 50 lakh rupees. Sandeep and I'm really grateful to them. Good guys, they were working in consulting in Dubai, and they just saw this ET Paraf idea. Who's Sandeep? Sandeep and Abhishek. Sandeep Uppal hai. He's one of the angels. He's a consulting, I3 consulting चलाते हैं वो. And that time they were in Dubai. तो कितना रेस किया फिर? सॉरी. हाँ 50 लाख है raised. टोटल. हाँ उस समय. from there, and और then 15 लाख 15 लाख का grant. So good runway Nice. for me to begin. And then lot of people accepting it. कि अच्छा पौधे भी बिक सकते हैं, पावर ऑफ आइडियाज का है तो कुछ होगा. तो अच्छी ब्रांडिंग हेल्प. मतलब these events somehow help is what I for the first time hearing, because आजकल बहुत events हो रहे हैं. But for you in that time, because there was no social media, there was nothing, and this was the big hit. Yes. Yeah. Yes.
वाओ, बिजनेस चलने लगा. बिजनेस चलने लगा, होम सेंटर्स हमने डील कर दी. दैट्स वेयर माय आइडिया आल्सो स्टार्ट क्लिकिंग. यार गिफ्टिंग नहीं करते हैं, होम गार्डनिंग में घुसते हैं. सो अनदर thesis came to me was that whenever plants are around it makes people happy. तो जब आप स्ट्रेस होते हो तो आप हिल्स पे जाते हो, आप गोवा जाते हो. क्यों जाते हो? बिकॉज इट मेक्स योर माइंड स्ट्रेस फ्री, राइट? इस रूम में आप प्लांट्स भर दो एंड योर स्ट्रेस लेवल्स स्टार्ट चेंजिंग. ग्रीन कलर ही ऐसा है, यू नो. ग्रीन कलर ही ऐसा है एंड इट्स ट्रू एंड इट हेल्प्स, राइट? तो ग्रीन. Yeah. We are sustainable companies, both of us, by the way. Yeah, that's on green and the power of plants. यस. तो आई थिंक वहाँ से चलने लगा. वी सेड यार होम डेकोर और होम गार्डनिंग करते हैं. इंडिया में होम गार्डनिंग तब करीब 20,000 करोड़ की मार्केट थी, 18,000 करोड़ की मार्केट थी. और मैं जब काउंट कर रहा था 18,000 करोड़ कितने होते हैं, तो आई रियलाइज यार एक भी ऐसा ऑर्गेनाइज प्लेयर नहीं है जो 5 करोड़ भी धंधा कर रहा है. वो सब नर्सरी से खरीद के. सब नर्सरीज में करते थे. तो जो 1980s में आटा के साथ होता था. हाँ, चक्की पे जाके. यस. आप चक्की पे गए हो? हाँ, मैं गया हूँ. मैं तो चक्की पे. मैं संदूक लेके आता था बचपन में. हाँ, मुझे याद है. मुझे भी याद है ना. बट आज अगर आश्रा और नाइसा से पूछेंगे कि कहाँ से आता है, तो ये ब्लिंकिट से आता है या 5 किलो का पैकेट आता है. एंड दे चेंज द इंडस्ट्री, राइट? आशीर्वाद चेंज द इंडस्ट्री इन लास्ट 25 years. We felt, and I personally felt, that next 25 years we can change for India, for this and for the world. And उस समय अपना vision actually decipher किया और बनाया that we want to put nature in every home across the world. 196 countries के हर घर में एक पौधा होना चाहिए. जिस दिन हो जाएगा उस दिन शटर बंद कर दूंगा, मैं रिटायर हो जाऊंगा. हो सकता है मर गया उसके बाद तो कोई और चलाएगा. बट दैट्स व्हाट नर्चरिंग ग्रीन विल कीप गोइंग ऑन. हर घर में एक पौधा होना चाहिए. अभी हमने कुछ भी नहीं किया है. सही बात है. कितने घरों में होते हैं वैसे पौधे? होने सबके चाहिए हैं. आइडिया नहीं, मोटा मोटा ये कोई रिसर्च है? सो मोटा मोटा डेटा में इंडिया में लेट्स से अगर मोटा मोटा 300 मिलियन हाउस होल्ड्स हैं, राइट? आज की डेट में करीब 50-55 मिलियन में होगा, राइट? कुछ फॉर्म्स ऑफ प्लांट्स, राइट? सो आवर आइडिया इज टू ब्रिंग दैट नेचर, बिकॉज व्हेन नेचर कम्स क्लोजर टू यू, you feel happy, right? And we want to spread that happiness in people. My personal thing is, सिगरेट भी बेच सकता था उस समय. ऑस्ट्रिया से आया था तो कंसल्टिंग में हम ना तब बीट्स बेच रहे थे. आई हैड अ क्लाइंट जिसको यूएस में यूरोप में बीट्स चाहिए थे और वो चाइना और इंडिया से आने थे. उसमें पैसे बन सकते थे, कंसल्टिंग में बन ही रहे थे. बट यार मुझे ये था कि कुछ ऐसा करूँगा जहाँ पे पैसा तो कमाऊँ, खुशी भी कमाऊँ. तो आज हमारे CSR के टारगेट और सेल्स टारगेट सेम है. एग्जैक्टली. ज़्यादा पौधे बेचो. फॉर यू ऑल्सो. इम्पैक्ट बिजनेस में यही मजा है कि यू आर डूइंग समथिंग बेटर व्हेन यू गो बैक इन स्लीप. कुछ अच्छा कर रहे हैं. आपको पता है आज अगर 5-6 हज़ार 7 हज़ार पौधे बिके हैं तो उन पे कॉन्वर्सेशन हुई होगी आज अच्छी नेचर के ऊपर. वो लोगों ने मिलके वहाँ पे अगर अच्छा गार्डन बनाया हुआ है तो उस पर उन्होंने बातें करी होंगी. दे वुड हैव स्पेंड गुड टाइम. फॉर यू द मोर व्हीकल्स यू पुट ऑन द रोड, एवरी डिलीवरी दैट वी डू, हमें वही हैप्पीनेस मिलती है. बस जितनी डिलीवरियां बढ़ेंगी उतनी हैप्पीनेस फैलाएंगे, उतना पोल्यूशन कम उतना पोल्यूशन कम होगा, राइट? सो अगेन फॉर योर CSR एंड योर सेल्स टारगेट आर द सेम. यार ज़्यादा डिलीवरीज करा. तो अनु फिर एंटरप्रेन्योर कब बना? मतलब पहले तो स्ट्रगल की जर्नी हमने सुन ली, बट अब थोड़ा सा, बाय द वे ही जस्ट टॉक्ड अबाउट दैट ही सेल्स अबाउट 7,000 प्लांट्स अ डे. 7 से 7,500 प्लांट्स आप दिन के बेचते हो. सो ये एक्सेलरेशन कब चालू हुआ? कुछ पिवटल मोमेंट्स बताओ. एक तो आपने बताया कि ग्रांट मिला, फंड रेजिंग हो गई, 50 लाख से धंधा चला. कोई और फंड रेज किया या फिर इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स कैसे आए? लेटर रेज किया. सो फंड रेजिंग के मेरे अपने अलग फंडे हैं. बताओ जरा क्या फंड है? VC वर्ल्ड जो आया था वो दुनिया में, इट केम फॉर द टेक बिजनेसेस बिकॉज दे हैड द पावर टू टेक फ्रॉम 1 to 100 बाय जस्ट एड ऑन ऑफ अ सर्वर, चाहे वो फेसबुक है चाहे वो गूगल है. बट कंज्यूमर बिजनेसेस 1 to 10 की जर्नी सेम तरीके से नहीं करेंगे एज टेक बिजनेसेस करेंगे. टेक इनेबलमेंट, मैं पौधे ही बेच रहा हूँ बट टेक इनेबल्ड हम सबसे ज़्यादा है. वी आर प्रॉब्ली द मोस्ट टेक इनेबल्ड कंपनी in the world in our industry, in terms of how we cross communicate, how we project the data in terms of projections, etc., and we use various sorts of ERPs, etc. But we realized, so my, again, as equations of money was anyway screwed, एक चीज मेरे पास विरासत से आई थी कि I don't want to take a call when I don't want to, and when you take money, you're obliged to टेक द कॉल. और वो मुझे वो बहुत ही
सफोकेटिंग लगता है और उससे डर भी लगता है. एंड आई हैव बीन टॉकिंग लॉट ऑफ माय मेंटोर्स टू गेट आउट ऑफ दैट फियर अच्छा, कि ये मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, या ये मेरे सिर्फ दिमाग का है. क्या फंडरेजिंग? Fundraising. So, for example, Nitin and Zerodha, right? For him, they never raise money because for him, the obligation to take a call or obligation to be answerable at any point in their life at any time was a lot of mental stress than saying they will grow probably 30% lesser than what they would have. So I said, yeah, if we are growing at 70-80%, which we were at the longest period of our life, तो यार बढ़िया यार. ऑफ कोर्स हो सकता है छोटे बेस पे हम 300% ग्रो करते, राइट. और दुनिया कहीं नहीं जा रही है, आप जितना भी बबल बनाओ जो भी करो है. But to be very frank, I just want to kind of come in here. I mean, one side, you are saying that you don't want to be answerable for the capital. But again, on the other side, there's a straight acceleration of your vision, which this capital can bring कि भाई हर घर में अगर पौधा पहुंचाना है तो वो तो कैपिटल से ही सॉल्व होगा. इसे जस्तुजू में जी रहे हैं. हाँ, नहीं तो क्या है मतलब व्हाई? आई थिंक you tread to a path to not raise a lot of capital. I think that's what you were referring to. Yes, so we are very very capital efficient organization. Okay. आज तक across equity we have raised 1.3 crores. That's all. That's all. जिसमें से वो 50 लाख 50 था and then Vijay came on board. विजय शेखर शर्मा. या कैसे आए वो, जरा ये भी बताओ. हाउ डिड यू गेट टू विजय शेखर शर्मा? So Vijay, because I knew him from 197 days. कैसे? So at one of the forums I met him and one of my friends was from DC and he was from DC. तो वहाँ मिले. तब तक Paytm कुछ नहीं था, 197 था, which was a normal vast company. 400-500-600 करोड़ का I think धंधा कर रहा था. Good, decent size, but not the scale of course there. And then we met and then I knew some common again. Renu थी वहाँ पे, so she was also a connect. हमने पिच करा था तब एक बार कि यार आप अपने एम्प्लॉयज के बर्थडे पे ना 197 में प्लांट्स गिफ्ट करा करो. अच्छा, विजय को पिच किया था, रेनू को. तो फिर वहाँ से मिले. 2014 आफ्टर मैरिज शिवानी जॉइंड 197. Oh, your wife and your girlfriend and your train friend, yeah. Yes. हाँ. And then she was there for almost 9 years. Okay. She was heading HR at Payments Bank. So she was there also. So that became a common link. Okay. And then one of the days I remember I was going to pick up Shivani and Vijay was going out. ऐसे क्या चल रहा है? बढ़िया. मैंने कहा ये कर रहे हैं. कहा और क्या करना है? तो मैंने कहा चलूँ साथ में because he was driving. अच्छा. तो मैंने शिवानी को मैसेज किया मैं तो नहीं आ रहा, तुम चली जाना. So I took parked my car and went on with him in his car. अच्छा. और वो I think 7-8 मिनट की जर्नी में ही. ऐसे ही उन्होंने कहा चलो गाड़ी में चलते हैं. हाँ, so he said क्या हो रहा है? He said यार लेट हो रहा है. मैं कहा चलूँ? तो he said हाँ चल. तुझे कहाँ जाना है? मैंने कहा आपको कहाँ जाना है? मैं कहा मैं तो जीके जा रहा हूँ. मैं भी वहीं जा रहा हूँ. तो मैं चल गया. And that journey from Noida Sector 5 to GK, we got the funding. Oh, lovely. Next day the money came in. हैं. He liked your idea so much. Yeah, and he's obviously passionate about also green. So we did it, and तब हम actually Paytm का office कर रहे थे actually for landscaping also. So I was talking, my team was also talking to their teams also, but of course it was too small a conversation which would have reached him. But Vijay invested the rest of the capital then. Yeah. And he's the only 2-3 players on the cap table then. Yes. And you have majority. We have majority. Super. तो उसके बाद फंड रेज ही नहीं किया. फंड रेज किया बट डेट किया क्योंकि तब धंधा पैसा बना रहा था. तो मतलब तुम बिजनेसमैन वाले डायरेक्शन में चले गए, स्टार्टअप वाले डायरेक्शन में नहीं गए. ये पाथ क्यों लिया? कैपिटल रेज नहीं हुआ, बहुत फंड्स को रेज किया ग्रीन में. I think I have rejected almost 6 or 7 thing, and then recently we had acquisition offer last year. We rejected again that. So दोनों के अलग अलग reasons थे. The पहला reason why I rejected the term sheet was because it was only meant for VCs to be successful and us or me as a founder to fail. How did you get that? मतलब ऐसा क्यों लगा? Tag along clause. So if you look at all the draconian clauses,
right? Which was getting put. So, for example, हमें 2014 में एक term sheet मिली थी, and they were expecting a minimum 4x का return in 3 years, and then all the clauses of tag along and drag along, etc., etc. And तब तक मेरे पास एक दो incident आ चुके थे. For example, you've heard of Fafanish, Vikram. They had raised a lot of money. Ex-Cars24. Currently, now Cars24, yeah. And a lot of these guys I sense were doing great with Fab Furnish and stuff. But then, it was sold for 3 crores. And you were in personal touch with some of these guys? A lot of these So you had, that's the network that was kind of So it telling was you. also motivating me to raise money. Yeah. So I went to 2011 to 13, I think I went to almost any VC in India. And जब मैं बाहर निकल रहा था तो I could see the shredder I can hear the shredder की आवाज़, right? Because हर एक में shredder रखा रहता है, क्योंकि इतने सारे पेपर रखने की और business plan रखने की जगह नहीं होती उनके. तो lot of time I've seen यार ये shred. So I've seen those failures, and उस समय मुझे बुरा लगता था. But today I know boss वो क्या सोचते हैं, उन्हें चाहिए क्या है, right? So they want very large returns for them to also, because they are also into the business of money, right? So when you're raising funds, are you saying that you're working for the VCs, and that's the path that you were feeling to be uncomfortable about? Yes. So I want to do something which is good for the organization and our consumers, and not for me and the VCs. Right? And ऐसी journeys में, at least मैंने पिछले 15 सालों में देख लिया, maybe I'm wrong, ईगो, ग्रीड, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जहाँ पे आप डाइग्रेस हो जाते हो, राइट? आपको सच और असलियत के बीच का डिफरेंस कई बार नहीं समझ में आता है, क्योंकि आपका परसेप्शन जो है वो आपको बोलता है कि यार ये सही तरीका है, जो हो सकता है नहीं है. आपके कंज्यूमर को क्या चाहिए, क्योंकि जब आप पैसे नहीं लेते, तो अगर आज मैं लेट्स से दिवाली में हम कह रहे हैं हम 8x ग्रो होंगे, हो सकता है बोलते 15x करना है, right? A 15x पे मैं वो But not all of them are like that, right? Maybe. Yeah, but you had that fear quite a lot. That's a lot of phobia I have. I still had and I still have. That's your personality, that you don't want Yes. kind of Absolutely. anyone controlling you in that sense, or asking you questions about things that you like to do. Yes, or which is right. So if it's right for the organization, then VC का success rate बहुत अच्छा होता है ना. VC का success rate is 0.0 something. Right? Which means out of 100 or 1000 organization they fund, you know the success rate क्या होने वाला है. Right? So वो 0-1 की जर्नी है. So either you make it big. तो ये कब डिसाइड किया कि अब प्रॉफिटेबल पाथ पे ही चलना है? यार मेरे वो रग में ही है. मतलब यहाँ से काटोगे तो खून जो है पहले ही हरा निकलेगा, और उसमें भी हर जगह लिखा होगा फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो. तो यार आई थिंक द पाथ दैट यू ट्राइड टू टेक इज कि भाई मुझे तो पैसे कैश फ्लो वाला धंधा चलाना है. एक तरफ यू आर सीइंग अ लॉट ऑफ फाउंडर्स रेजिंग कैपिटल, right? Some super successful even after raising capital. There's a Zomato, and then there are a lot of others who've not kind of done well with the capital, and then there's a third path, which is non-capital path that you are as of now non-VC path. Every time I've heard you that saying that. So what's your perspective on all three? So see, Zomatos of the world are very rare. So मुझे नाम बता, इंडिया में I've been into this business for 15-14 years. If I count, I can count it on just these numbers who have really created what it was intended to. Again, Zomato अभी नहीं हुआ, but potentially होगा. and Zomato is a success. Right? Today it's a success. आज से 3 साल पहले, तो 2 महीने बाद in 2019 when the COVID came, and after that, what Deepinder said, he had just 2 months of free cash of running it. Right? So today, of course, they're non-beatable. They have done it. So he's seen that, right? So of course he has made it, and there's this grit and perseverance, and hats off to the scale he has built it, which is now not turnable. Right? But the valley of death, he's seen a lot more in that journey. In that journey, Vijay sir, right? Of course, look at the journey, right? What has happened, and he's still moving up, and I'm sure he'll pull it off. So there are certain entrepreneurs जो special breed होते हैं, and उनका market size और the potential they are trying to solve is also very large. Right? It's not that I don't have that vision or the potential market size of the world of bringing nature in every home is small.
बट मुझे उसको ये मेक श्योर करना है कि उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सर्वाइवल इज हायर. That's the job of the entrepreneur. That's a job of that. Yeah? You make sure that your company doesn't die the next day, right? And you keep extending the death, which is what Jeff says, right? They know that Amazon will die. Correct. They extended it every single day, and that's his job. Yeah, that's exactly what Jeff Bezos says all the time. The job of the entrepreneur is to ensure the bankruptcy is delayed as It's much delayed as as much as possible, right? At some point, they will become irrelevant. So मेरा भी वही जॉब है कि यार क्या ये विजन कैपिटल तो रेस करना पड़ेगा, देयर इज नो सेकंड डाउट ऑन इट, राइट? बट क्या मैं इसको डिसिप्लिन से, कंपाउंडिंग से, अगर बाय द वे इफ यू ग्रो एट 40% ईयर ऑन ईयर, राइट, in 15 years you will create a behemoth which people have not heard of. Even if you start at, let's say, 10 crore rupees of revenue, right, and you compound that and you will see the numbers are crazy enough, right? And if you can keep doing 40% year on year, heads down, keep building, doing nothing else, you will do that, right? And the risk of failure is less at that point. Instead, you say, was okay, it's go big or go home strategy. So either from 10 crore, I do a 5x jump year on year, but the probability of success goes down. So I am trying to play a probability game here also, saying, can I increase Nurturing Green's probability of success? Uske liye, if I have to give away the growth, not growth, but sustainable growth is what you are referring to. मेरा सिंपल सा मेरा CFO को धंधा होता है, बॉस टेल मी द नंबर which we grow at, जहाँ पे हमारा EBITDA 10% रहेगा और फ्री कैश फ्लो प्लस रहेगा. मुझे वो ग्रोथ नंबर बता दे रिवर्स वर्क. स्टार्टअप की दुनिया में फ्री कैश फ्लो एक बार जरा समझा दो देसी भाषा में. अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं बॉस? अकाउंट में कितने पैसे पड़े हैं? ठीक है, पड़े हैं 100 करोड़. फिर आगे? तो वो तो VC के हैं, बट धंधे से कितने बन के आए? धंधे से कितने पैसे बन के आए? 100 रुपए की चीज 120 में बेची, जो उधार में चली गई, तो वो फ्री कैश फ्लो नहीं है. उसमें 20% का मुनाफा तो है, बट फ्री कैश फ्लो नहीं है, पैसा नहीं आया. ट्रिकल डाउन करके सारी कॉस्ट हटा के जो पैसा बच रहा है बैंक अकाउंट में ऐड हो रहा है. ऐड आ रहा है तो है फ्री कैश फ्लो. अगर बैंक अकाउंट हर महीने गिर रहा है तो फ्री कैश फ्लो नेगेटिव हो. आप 100 की चीज 120 में तो बेचते हो, तो आप 20% प्रॉफिट बनाते हो, लेट्स से नेट ऑफ, बट आप उधार में बेच देते हो तो आपकी जेब में कुछ नहीं आ रहा. या फिर आपके टीम के खर्चे इतने जाने हैं कि वो तो आपने नेट में डाल दिया. आपने 100 रुपए का खर्चा, लेट्स से आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट में 50 होगी, आपने 100 रुपए का उसको सब मिला के वैल्यू ऐड करके एम्प्लॉय डाली, सब डाला, 100 रुपए का उसको बना दिया, उसको नेट ऑफ 120 में बेचा भी, तो 20 रुपए आपका लेट्स से नेट प्रॉफिट है. ठीक है जी, तो ये तो मुनाफा है 20% का, बहुत बढ़िया, अच्छा धंधा है. बट आपके पास उस 120 रुपए में से आपका पैसा कितना आ रहा है? वो 20 रुपए आपके पास आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? वन इज उधार, सेकंड इज डिस्काउंट, उसमें बेच दिया. जो भी, राइट, आपके अकाउंट में वैसे हैं कि नहीं है, दैट्स व्हाट मैटर्स. माय डैड यूज्ड टू से यार, जो घर पे आया, जो रोकड़ा है, वो है धंधा और वो है पैसा. एंड आई यूज्ड टू स्टिल बिलीव टुडे आल्सो कि बॉस अच्छी गुड डिसिप्लिन कंपनीज उसको वही तरीके से ट्रीट करती हैं. उनके तरीके बदल गए हैं, उनकी मॉडर्नाइजेशन हो गई, उनकी लैंग्वेज चेंज हो गई है, बट एसेंस अब भी वही है. आप सूरत में जाओगे तो हर आदमी फ्री कैश फ्लो की बात करता है. आप किसी भी मारवाड़ी से बात करोगे तो वो धंधा उसको आता है. और इंडिया में तो धंधों की कमी नहीं है, SMEs की कमी नहीं है, जो आज भी 100 करोड़ कर रहे हैं उनको धंधा समझ में आता है. तो मेरे को धंधा समझ में आता है. तो क्या करना चाहिए फ्री कैश फ्लो को इम्प्रूव करने के लिए? तुमने क्या किया? सो यार, बहुत डिसिप्लिन होके काम करने की जरूरत है. मतलब कि कुछ चीजें आपको देखना है कि आप 100 की चीज 80 में बेचोगे तो कभी पैसा तो नहीं बना रहे. प्रॉफिट बनाना चालू करो. तो मुझे बहुत लोग बोलते थे कि यार अभी 100 की चीज ना 80 की बेचो, लोगों को आदत लग जाएगी और फिर देखना इन द लॉन्ग रन आप ये चीज 150 की बेच पाओगे. एंड आई यूज्ड टू टेल देम इन द लॉन्ग रन एवरीबॉडी इज डेड. व्हाई? In the long run, you are dead. But everyone has played that game, right? Very little people have survived out of it. Right? Marketplaces have survived out of it. Correct. Brands have not survived. Food commerce have. Which is marketplaces. Zomato has. Or any market, Amazon has. Right? Because at that time when they used to do that, they're bringing people on their platform. Now they're doing the same thing by kicking off the brands. Right? आप आज Amazon एक ब्रांड को धंधा दे रहा है, तो आप किसी से बात करो 60% 70% से नीचे नहीं लेता.
तो मेजॉरिटी पैसा तो वो कमा रहा है। अगर आप स्केल कर रहे हो, आप किसी से बात करो आज की डेट, राइट? तो आज वो कमा पा रहा है क्योंकि आज वो डिस्काउंटिंग उधर डाल रहा है। तुम कह रहे हो जो ब्रांड्स वाला बिजनेस है, या फिर तुमने D2C एक आपको मैं कंज्यूमर ब्रांड बिजनेस ही बोलूंगा। आप प्लांट को ब्रांड करके अच्छे से पैकेज करके घरों में पहुंचा रहे हो। ऑनलाइन ऑफलाइन कितना है अब आपका धंधा? 60-40 हो गया, 60 इज ऑनलाइन नाउ एंड 40 ऑफलाइन चला गया। और ये 3 साल पहले बहुत डिफरेंट स्टोरी। एक साल पहले बहुत डिफरेंट था। 1 साल में क्या बदल गया, जरा ये बताइए। मेरा विश्वास कि किसी को भी 10 मिनट में पौधे नहीं चाहिए बहुत ही सरासर गलत था। और मुझे लगता था किसी को 10 मिनट में कुछ भी नहीं चाहिए। मे बी ग्रॉसरी चाहिए, मे बी कॉन्डम्स चाहिए, मे बी बेसिक्स चाहिए, बट मैं बहुत ही गलत था। ऑफ कोर्स नाउ द वर्ल्ड नोज। तो क्यों कॉमर्स आ गया। सो जब जब वर्ल्ड में चैनल्स बने हैं, जिन्होंने उसको ऑप्टिमाइज किया है ब्रांड्स ने, वो बहुत बड़े बन गए। तो चाहे वो HUL ने जनरल ट्रेड को किया था, या बोट ने ई कॉमर्स को किया था, या बिग बाज़ार को जो मॉडर्न ट्रेड था उसमें उस समय के जो ब्रांड्स आए थे जो आज बहुत बड़े बन गए, लेट्स से वीबा फॉर दैट मैटर, राइट? ये वीबा जो है, वीबा बना ऑल्सो फ्रॉम मॉडर्न ट्रेड एट दैट टाइम, राइट? तो ई कॉमर्स में बोट को कोई नहीं जानता था उससे पहले, राइट? ई कॉमर्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी बूम हुई, और उस समय ई कॉमर्स नया था, उन्होंने उसे अच्छे से कैपिटलाइज किया और एक चैनल में बहुत बड़े बन गए, और उससे फिर वो वापस सारे चैनल में चले गए। द बिग डैडी ऑफ एवरी चैनल इज इवेंचुअली जनरल ट्रेड भी। ओवरऑल रिटेल इन इंडिया में 93-4% आज भी ऑफलाइन और जनरल ट्रेड ही है, मॉडर्न ट्रेड भी नहीं है। सो मॉडर्न ट्रेड एंड ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स मिला के मोटा मोटा 10% में सब सिमट जाता है इंडिया की रिटेल इंडस्ट्री। So you got to go offline. So you have to go offline, बट जाना किस तरीके से वो हर एक का क्वेश्चन होता है। मेरे लिए मजबूरी थी क्योंकि वहाँ उस समय कोई और चैनल था नहीं, तो मैं इसीलिए मॉडर्न ट्रेड के थ्रू गया था। आज जब ये आ गया है चैनल, और आज की डेट में 10 मिनट में आप किसी को गिफ्ट देना है, फॉर एग्जाम्पल वैलेंटाइंस डे, मदर्स डे, फादर्स डे, और अब दिवाली या राखी फॉर दैट मैटर, अभी मैंने ट्रेंड कभी होते हुए नहीं देखे कि राखी में एक बहन ने अपने भाई के लिए 1 महीना पहले प्लानिंग करके नहीं रखी है। एटलीस्ट मेरे घर में तो ऐसा होता था। मैंने बहुत सारे ऐसे जिनको जानता हूँ जो मिडिल क्लास से आते हैं, मेरी माँ 1 महीना पहले ही डिसाइड कर लेती थी भैया को राखी, भाई को राखी भेजनी है, तो राखी खरीद के Everyone used to do that. This time it was very different, right? This time, in fact, I told Rashi कि हर बार हम Amazon use करते थे to order the gift for my sister and her brother. This time I said यार छोड़ दो, इस बार तो सारे प्लेटफॉर्म्स 10 मिनट, राइट? दैट वाज अमेजिंग। So we are living in a magic world. तुम लोग की कितनी सेल बढ़ी उससे? We have skyrocketed there. नंबर्स बताओ। So हम मोटा मोटा आज की डेट में 3,500-4 हज़ार ऑर्डर्स पर डे क्विक कॉमर्स से कर रहे हो पर डे? जो हम आज से 6 महीने बाद इसको 8,000 कर देंगे, जो कि अभी हम सिर्फ ये बॉम्बे, दिल्ली NCR से कर रहे हैं। सिर्फ 2 सिटीज में? बैंगलोर अगले हफ्ते लॉन्च हो रहा है हमारा। मतलब अभी 2 सिटीज में 4,000 प्लांट्स आप क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, वो भी अभी सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, व्हिच इज Blinkit, Zepto and Instamart. Okay, these are the 3, and Big Basket obviously, BB Now. बास्केट एंड मिल्क बास्केट में लेट्स से लास्ट 10% भी लेट्स से बचता है, बट इन सब में अभी हम जिस पेस पे वो ग्रो हो रहे हैं अभी नहीं पहुंचे हैं। क्योंकि वो आप 2 ही मार्केट्स में हो ना। हाँ, पहले तो आपको मार्केट एक्सपेंशन करना मार्केट है। है, मतलब रीजन में हम 2 रीजन में हैं। सो हम अभी पुणे बॉम्बे में हैं, दिल्ली NCR में हैं, और चंडीगढ़ से पहुंचता है वहां पे अभी। सो अभी देर बहुत लिमिटेड है अभी इंडिया का। बट 4 मार्केट्स में 2 मार्केट्स में, 2 और 2 छोटे मार्केट्स में आप 4,000 प्लांट्स बेचते हो आज क्विक कॉमर्स में। 1 साल पहले, 1.5 साल पहले कितना था? 0। नहीं, टोटल बताओ। जैसे टोटल 8,000 है, उसमें से 4,000 क्विक कॉमर्स है। मोटा मोटा 2-2.5 हज़ार पीस बेचते थे उस समय 1 साल पहले जब क्विक कॉमर्स नहीं था, आप 2-2.5 हज़ार बेचते थे। आज आप 8,000 बेचते हो, जिसमें 4,000 क्विक कॉमर्स है। Amazing. That's the crazy growth of quick commerce in India. And it's not stopping. We believe this to हमारा जो दिवाली का टारगेट है वो 8x है, मैंने तुझे बताया। तो मतलब कि हम सिर्फ उस महीने में एटलीस्ट उस 15 दिनों में 25 से 30 हज़ार पीस पर डे बेचेंगे। Wow. So you're preparing for that. We're preparing for that. And only in these markets. तो ये and we're looking at doubling our numbers by end of this year on quick commerce. जो मतलब 2x हो जाएगा। बहुत ही घटिया खेला अगर तो हो जाएगा, अच्छा खेला तो ज़्यादा ही होगा। अब बताओ कि आपके पास इतनी ग्रोथ आई,
पिछले 1 साल में आपने इमेजिन नहीं करी थी? एक नया चैनल आ गया, आपके धंधे को ऊपर ले गया. दैट्स द ब्यूटी ऑफ प्लेटफॉर्म्स. बट अभी भी देयर आर टू पाथ्स. वन इज द पाथ दैट यू आर ट्रेडिंग टू, विच इज चलो मैं कैश फ्लो देखता हुआ धीरे धीरे ग्रो करूंगा, अभी 5 सिटीज में नहीं खोलूंगा. While at the same time, there's capital which will control you a bit. And you can actually multiply to 5 more markets. What's the path that Anu's gonna choose? ये रोज रात को 12 से 6 बजे सुबह तक जो नींद नहीं आने देता हो, यही क्वेश्चन है कि what do I choose? You know, what if anything goes wrong and keeps me thinking, should I take it and scale? Or we keep this is also Because there must be competition getting added. yeah, they raised 3 million, 2.5, 3 million, and they will raise more. But we're like, ठीक है, वो अपना जर्नी कर रहे हैं. कैटेगरी इतनी बड़ी है, अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज होता रहेगा. 26,000 करोड़ की आज की डेट में 28,000 करोड़ की. But you are the first mover 14 years into this market. Yes, absolutely. You are the guy who should take the cake. Yes. The cake is building Pie now. has to be with me. But what says that कि अगर ये slow and steady we keep growing at 150%, 100% year on year, we will not get this pie. Because वो कल्चर मेरी कंपनी में हर एक के अंदर है. पियून से बात करेगा ना, तो वो भी चाय पिलाने से पहले देख लेगा कि यार इसको है कि नहीं है, मतलब कि फ्री कैश फ्लो बन रहा है कि नहीं बन रहा है. अच्छा. मेरी HR को टारगेट है फ्री कैश फ्लो का. फाइनेंस तो कुछ और बात HR तो तुम्हारे घर में ही है अब. घर में ही है, तो उसको भी अभी ये आ रहा है कि ये क्या होता है. मुझसे HR से क्यों पूछ रहे हो फ्री कैश फ्लो क्या होता है? मैं कहा, भाई तेरे से भी आना चाहिए ना, हर रग से आना चाहिए, हर डिवीजन से आना चाहिए. अरे धंधा तो धंधा है. सो यू वायर योर माइंड हाउ यू गेट ग्रेट टैलेंट who will build a sustainable company. How big is your team? We are somewhere around 250 odd people on pay. मोटा मोटा 300 350 के आसपास सब मिला के. So आप अभी क्या मतलब प्रॉफिट परसेंटेज कितना है आपके बिजनेस का, और क्या टॉप लाइन है, थोड़ा सा बताओ. So हम मोटा मोटा आज की डेट में 6-7 करोड़ कर रहे हैं. 6-7 करोड़ महीने का, महीने का. मतलब 70-80 करोड़ साल का. आप प्लांट्स बेच रहे हो. गार्डनिंग कैटेगरी बेच रहे हैं, तो उसमें हमारी 3 कैटेगरीज हैं. प्लांट्स, प्लांटर्स, स्टैंड्स एंड मैन्योर हमने अभी ऐड किया है, मतलब प्लांट. मैन्योर भी बेचते हो, ठीक है. एवरीथिंग जो तुझे गार्डनिंग में यूज हो सकती है, वी वांट टू बी एवरीथिंग देयर. तो अभी हमारा तीनों चीज़ें हो रही हैं. हमारी रीजनल एक्सपेंशन हो रहा है, हमारा चैनल एक्सपेंशन हो रहा है, और हमारा कैटेगरी एक्सपेंशन भी हो रहा है. नहीं, आप 80 करोड़ में से कितना पैसा बचाते हो? सो हम मोटा मोटा नेट एबिटा 4-5% पे रखते हैं. मतलब आप आता है, जो कि हर एंटरप्रेन्योर, मेरे को अकाउंट में पैसे मजा ही नहीं आते, मैं क्यों करने हैं, क्या रखने हैं. तो जब वो फ्री कैश फ्लो बनता है, री इन्वेस्ट कर देते हैं हम आज की डेट में ग्रोथ पे, क्योंकि वो तो कितना भी कर दो. अच्छा, जो प्रॉफिट आता है वो री इन्वेस्ट कर रहे हो आप बिजनेस में टू फ्यूल द बिजनेस, वही आपका फंडिंग चैनल. I haven't taken any dividend till date in my life. I started taking salaries from 2016. Till that, Shivani was funding the house. Every money, I said, यार अगर 2 लाख ले सकता हूँ तो वापस इन्वेस्ट कर देता हूँ. Today it sounds stupid, of course, कि यार सस्टेनेबल बिजनेसेस में फाउंडर्स को सैलरी लेनी चाहिए, एब्सोल्युटली लेनी चाहिए. बट उस समय उस जगह पे मैं अकेले था, मुझे पता है कि मैं किससे जूझ रहा था, तो मुझे लगता था यार ये पैसा मैं वापस डालूंगा, जो कि अभी बहुत छोटा है कैपिटल. ऑफ कोर्स हर बार मेरे पास ये मौके आए कि आप फंड रेज कर लो और साइन कर दो जो भी लिखा है उस शीट पे. बट हर बार कहीं ना कहीं मेरे को, जब मैंने वो पढ़ा, मैंने अपने लॉयर से बोला, मुझे समझा इस क्लॉज का मतलब, और जब मैंने रात को जाके भाई ये नहीं साइन करूँगा. अच्छा. फिर वो नेगोशिएशन पे गया और इवेंचुअली कई बार नहीं हुई डील, बिकॉज वो कहते हैं ये तो हमारा स्टैंडर्ड है. मैंने कहा स्टैंडर्ड आपके लिए, मेरे लिए तो नहीं है. मैं इस स्टैंडर्ड पे साइन कैसे कर दूँ जहाँ पे मुझे पता है कि इतने सारे फाउंडर्स तो कर रहे थे. यस, और मेरे सारे सर्कल में कर रहे थे, तो मुझे बहुत सारा इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था. तो क्यों? क्योंकि जिस टेबल पे मैं बैठता था, उस कोइंसिडेंटली उस टेबल पे, क्योंकि मेरे फाउंडर फ्रेंड बिजनेसमैन नहीं थे, जो धंधे वाले, मतलब जो ट्रेडिशनल न्यू एज एंटरप्रेन्योर्स हैं तुम्हारे तो सारे दोस्त. हमारे सारे दोस्त. तो उसमें इन्फीरियरिटी क्या था? क्योंकि वो सब तो 70 मिलियन अकाउंट में लेके बैठे हुए थे. या तो जस्ट क्विकली, सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट क्विक कॉमर्स, आई वांट टू नो अनु कि आप सारे क्विक कॉमर्स पे लिस्टेड हो ऑलरेडी. व्हाट्स द प्रोसेस टू गेट लिस्टेड ऑन क्विक कॉमर्स, और क्या मार्जिन प्रोफाइल रहती है, मतलब कितना मार्जिन वो रखते हैं और कैसे चलती है? क्विकली बताइए. हम बहुत सही टाइम पे उसमें एंट्री कर दे, प्रॉब्ली लक, तो घुस गए. आज के डेट में ऑब्वियसली क्विक कॉमर्स में जाना
Oh, so how were you the first ones? क्योंकि अलबिंदर और दीपिंदर को, आई थिंक दीपिंदर को किसी ने प्लांट दिया था और अलबिंदर was knowing about that gift plant is a good category and they were building a thesis कि gifting is a big category जो वो कैप्चर कर सकते So they were scouting for someone to sell plants. गिफ्टिंग कर ही सोच रहे थे और उसमें जैसे ही बुके आया तो फिर वो अच्छा प्लांट इज अ ग्रेट आइडिया बिकॉज एंड देन इट जस्ट सो वी आई जस्ट मैसेज आई रिमेंबर अलबिंदर एंड Blinkit was live then? ऑलमोस्ट लाइक बस शुरू ही हुआ था आई थिंक No grofers. You were not selling on grofers. No, we were not selling on Grofers. We were selling on Blinkit and I just messaged, remember Albinder doing it. Teams बात कर रही थी, कुछ हो नहीं रहा था, बहुत slow था process. I remember messaging Albinder and I think next day we were done with it. You were live. We were almost 7 days I think we got live. But paperwork happened a year back. Exactly a year, October October of? last year. Wow. October of 23. Wow, and quick commerce is so real. I think I can't imagine life without quick commerce now. And it was just Just a year back, right? So live, October, not even a year, not a year back. 10 months back. For us, 10 months back and quick. And you were almost the first ones to. Initially, yeah. उसी era में I think they were scaling up थे, But margin profile बताओ. Quick commerce का कैसे धंधा, कितना margin वो लोग ले जाते हैं? so anyway जैसे मैं तुझे बताया मुझे तो फ्री कैश फ्लोज के अलावा समझ नहीं आता तो CM1 में 30 से नीचे बात ही नहीं करता तो 30% उनको देते. मतलब नहीं कॉक्स भी तो है. तो टोटल सेलिंग प्राइस माइनस उसको बेचने के लिए जो भी लगता है प्रोडक्ट कॉस्ट कमीशंस डायरेक्ट लॉजिस्टिक्स एनीथिंग एड्स एक्सेट्रा कैक भी आ गया इसमें. सब कुछ कैक भी. सिर्फ फिक्स कॉस्ट बचता है सैलरीज रेंट्स एक्सेट्रा फाइनेंस कॉस्ट उससे पहले 30 रुपए बचने चाहिए भाई वाओ. और आप 100 रुपए का भी प्लांट बेच रहे हो शायद. और हम 100 रुपए का बेच रहे हैं उसमें हम 30 रुपए बना रहे हैं दिस इज फिनोमिनल. तो 30 रुपए वो मार्जिन है मतलब सब कुछ है. विच मीन्स देयर मार्जिन वुड बी क्विक कॉमर्स वुड बी. सो दे विल वर्क एनीथिंग फ्रॉम 20 to 40% आज की डेट में डिफरेंट कैटेगरीज बट यू वर अर्ली मूवर तो आपका थोड़ा बेटर होगा. और वो कैटेगरी स्पेसिफिक भी है कैटेगरी भी है, सस्टेनेबिलिटी है, प्लांट है. तो अलग कैटेगरीज के अलग मार्जिन हैं ओके. तो बट एक अब मुझे ये बताओ कि मेरे को बहुत इंट्रीगिंग लगता है कि आपका प्लांट मेरे हाथ में जब आता है तो क्या जर्नी रहती है उस प्लांट की, कहाँ उगता है, क्या कैसे आप उगाते हो और कैसे लेके आते हो हमारे तक. सो हर प्लांट जो है वो एक बॉटल में उगता है पहले तो एक लैब के अंदर एक एप्रन पहने हुए एक डॉक्टर के अंदर सही में जो लाइन से वर्टिकल में लगे हुई हैं आपके फार्म पे मैं आया था. आर यू टॉकिंग अबाउट दैट? वो उससे बाद की जर्नी है उससे पहले की जर्नी इज द टिश्यू कल्चर लैब. सो हमारे सारे प्लांट जो हैं क्लोन्ड हैं फ्रॉम द बेस्ट मदर इन द वर्ल्ड. तो अगर आप सिंगोनियम ले रहे हो या एक लेट्स से 99 का प्लांट जो ले रहे हो उसका जो मदर था जो सबसे वर्ल्ड का बेस्ट मदर था उसके टिश्यूज उठा के उसके सेल्स उठा के एक लैब में उसे मल्टीप्लाई करे और फिर उसे एक बॉटल में उसको ग्रो कराए. वो लैब आपकी है? वो लैब हमारे पार्टनर्स की है जो हम कंट्रोल हम एसओपी करते हैं कि क्या कैसे करना है एक्सेट्रा. And that's a proprietary or a patent or something? Not yet. So tissue culture labs in the world are And you have some people who are doing this for you. who are doing it for us. तो हम कहते हैं ये प्लांट इस SOP प्रोटोकॉल में इसको उगाओ और उसके बाद आप हमें हमारे दूसरे पार्टनर को भेजो जब वो छोटा बच्चा सा है. सो वंस इट्स एट 2-3 सेंटीमीटर तब वो जाता है उस फार्म पे जहाँ पे लेट्स से तू गया था. तो दीज आर नॉर्मल पॉली हाउस स्ट्रक्चर्स. बच्चा पैदा हो गया है कोक से निकल आया है बट अभी थोड़ा छोटा है तो उसको थोड़ी केयर ज़्यादा चाहिए और फिर वो ग्रोइंग एरिया में आ जाता है जिसमें वो बड़ा होता है और वहाँ से फिर हमारी जर्नी शुरू होती है कि उसको पैक करना. सो इमेजिन करो आज की डेट में हम 27,000 पिन कोड्स पे बेच रहे हैं. आज तक हमने आई थिंक 18,000 पिन कोड्स में सप्लाई किया हुआ है. तो 7,000 ऐसे हैं जो ऐसे गांव या क्षेत्र हैं जहाँ पे लोगों को खाने के लिए नहीं है तो ऑब्वियसली वो पौधे ऑर्डर नहीं कर रहे. बट 18,000 अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे किसी ने कुछ ऑर्डर किया हुआ है. वहाँ तक भेजने के लिए इंडिया में हर मौसम में अलग अलग साइजेस में अलग अलग पैकेजिंग में और वो इंडियन लॉजिस्टिक सिस्टम से जाएगा तो वो पता है कैसे फेंकते हैं. उससे जाते हुए वो क्या प्रॉपराइटरी पैकेजिंग बनाएं उसके अंदर क्या फीडिंग मैकेनिज्म्स बनाएं वो सब हम रिवर्स मैच करते हैं. सो अगर मुझे यहाँ प्लांट रखना है और यहाँ की लक्स जो लाइट की लेवल है अगर वो 500 ही है तो हमने ऐसे प्लांट्स बनाए हैं जो अब लो लाइट में भी सर्वाइव करते हैं. तो वो हमने उसकी जो इनहेरिटेंट उसके जो क्रोमोसोम्स हैं उसको चेंज किया है.
थ्रू टेक्नोलॉजी, विच मीन्स कि हमने हर प्लांट का स्टोमेटा बढ़ा दिया। स्टोमेटा वो चीज़ होती है जहाँ से फोटोसिंथेसिस। ये बहुत टेक्निकल जा रहे हो आप, बट आई थिंक प्लांट आप लैब में बना लिया आपने, बहुत अच्छा बनाया। हम कभी और समझाएंगे, सेपरेट यूट्यूब चैनल पे आपके डालेंगे। हाँ, लैब में बनाया। लैब में बनाया, हमारे फार्म पे आया, वहाँ पैकिंग हुआ, वैल्यू ऐड हुआ, हमारे स्टोर्स या नहीं नहीं, फार्म पे उगा कुछ समय, थोड़ा टाइम होगा, उसके बाद उसके लिए माली वाली होते हैं, बड़ा फार्म है आपका। हाँ, हम टोटल 70 एकड़ कॉन्ट्रैक्ट ग्रोइंग तो फिर हाँ ठीक है। और उसके बाद वो हमारे वेयर हाउस सेंटर्स में आए जहाँ पे वो पैक होता है, पॉट होता है, पैक होता है। वो वहीं नहीं होता जहाँ पे फार्म है, अच्छा कहीं और जाता है। ओके ठीक है। तो वो हमारे इंडिया के अलग अलग वेयर हाउसेस में पहुंचा, वहाँ से वो पैक होके या तो मॉडर्न ट्रेड में, होम सेंटर्स, रिलायंस स्मार्ट्स इन सब में चला गया, या नर्सरीज में चला गया, या ब्लिंकिट के डार्क वेयर हाउसेस में चला गया, और वहाँ से और उनके मदर हब्स में चला गया, और वहाँ से 1000 डार्क स्टोर्स में जा रहा है, लेट्स से अक्रॉस इंडिया, इन ऑल प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडेड। और फिर वो डार्क स्टोर से कस्टमर के घर पे जिप के थ्रू डिलीवर हो जाएगा। एग्जैक्टली। परफेक्ट, सो दैट्स कंप्लीट। अच्छा ये बताइए, प्लांट तो पहुंच गया हमारे पास, आपका एक फिलॉसफी है, मैंने देखा है आपके कुछ 250 एम्प्लॉयज़ हैं शायद, राइट? आप पूरा वर्क फ्रॉम होम सेटअप चलाते हो, मेरे को नहीं समझ में आता है ना। मेरे को बहुत लिंक्डइन पे लोगों ने बहुत मारा है, मैंने जब एक बार डाला था कि भाई वर्क फ्रॉम होम मेरे स्टार्टअप्स के लिए नहीं होता। आप स्टार्टअप टाइप एंटरप्रेन्योर बताते हो, हालांकि फंडरेज नहीं कर रहे हो, बट क्या है ये वर्क फ्रॉम होम, कैसे चला पाते हो? सो 2019 तक प्री कोविड, अगर मुझसे कोई कहता था कि यार आज मेरे को थोड़ा तबीयत खराब नहीं है, मैं घर से काम कर लूँ, तो मैंने कहा छुट्टी ले ले, नो इट्स ओके, बट घर से काम ना करियो, क्योंकि मुझे तो तू सामने चाहिए, तो कि वहीं से एनर्जी आती है, वहीं से पता होता है, वहीं काम होता है, वरना काम नहीं होता। तो वो एनर्जी, वो काम, वो प्रोसेसेस, टीम्स कोऑर्डिनेशन एक्सेट्रा। तो कोविड आ गया ऑफ कोर्स, तो मैं कहा यार अब तो होगा नहीं मेरे से, और ये हो ही नहीं सकता। अब तो क्योंकि मैं तो कहता था वर्क फ्रॉम होम हो ही नहीं सकता, और कोई वर्क फ्रॉम बाहर तो आ ही नहीं रहा था कोविड में। तो हमने तब ऑब्वियसली सबने जूम, गूगल मीट, इन सब पे जाना शुरू किया। तो हमने कहा चलो जाते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है, राइट। आई स्टिल रिमेंबर, मैंने कहा ये सब होगा नहीं, बंद करते हैं, अब नहीं हो सकता, क्योंकि ऑनलाइन कैसे हो सकता है काम, बस सामने बैठे हैं, ये सामने है, एनर्जी है, काम हो रहा है, अभी सॉर्ट कर रहे हैं, अभी प्रॉब्लम हो रही है। तो ऐसे तो ऑनलाइन में जब तक आप अपॉइंटमेंट लेते हो गूगल मीट का, तब तक 15 मिनट चले जाते हैं। तो वी सेड या नहीं, देन केम गैदर एक सिलिकॉन वैली का स्टार्टअप है, दे हैव अ डिजिटल वर्चुअल ऑफिस, गैदर करके। तो प्लीज देखिएगा, मैं उनकी फ्री पब्लिसिटी कर रहा हूँ, दे डोंट फंड मी एनीथिंग। क्या है गैदर एक वर्चुअल वर्क स्पेस है जहाँ आपका डिजिटल अवतार है और आपका कैमरा और माइक हमेशा ऑन है। इट्स लाइक अ वीडियो गेम, बट आप इमेजिन करो एक ऑफिस में बैठे हो, तो ये रूम में अगर हम लोग बैठे हैं तो हम सबको एक दूसरे की आवाज़ आ रही है, वीडियो आ रहा है। मैं यहाँ से निकल के दूसरे ऑफिस में जाऊँगा तो मुझे वो आवाज़ नहीं आएगी, मुझे उन ऑफिस की आवाज़ आएगी। तो हमारे में ऐसा हमने एक वर्चुअल ऑफिस बनाया हुआ है जहाँ पे हम बहुत हार्ड कोलैबोरेशन करते हैं, और जो भी वर्क फ्रॉम होम की प्लस थे उसको भी ले लेते हैं। तो आज की डेट में मेरे पास एक कैटलॉग का बंदा जो मार्केट में अमूमन 50,000 का मिलेगा ना, हम 30,000 में रखते हैं, क्योंकि वो अपने गांव आंध्रा में बैठा हुआ है, उसके खर्चे नहीं है यहाँ दिल्ली। ये बेनिफिट मिल जाता है आपको कि भाई तो घर से यू गेट कॉस्ट सेविंग। एग्जैक्टली, और वो भी कहता है बढ़िया है, मैं घर पे बैठा हूँ, मेरे खर्चे नहीं है, आई एम एट माई होम। बट वो सब कुछ हासिल हो जाती है, मतलब बिल्कुल हो रही है, और कर रहे हैं। 8x बोल रहे हैं, हम करेंगे 8x इज अ गुड 8x in 4 months, इन दिवाली। yeah, which is 4 months, 3 months, yeah. यूजुअली वी वांट टू डबल इट बाय दिस ईयर। आज के नंबर से ओवरऑल देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.5-3x हो गए। सो 3x ग्रोथ इज अ डिसेंट ग्रोथ विदाउट VC money. Without VC money and by working from home, which is commendable. Do you have a tech team? We don't have it direct, but we have an indirect one. तुमने बहुत चीज़ें आउटसोर्स भी कर रखी हैं आई थिंक बिजनेस में, विच इज़ ऑल्सो अ नाइस वे। पैकेजिंग भी आउटसोर्स्ड है, हमारी सब कुछ आउटसोर्स्ड है, जो चीजें हमें वो लैब भी आउटसोर्स्ड है, फार्म भी आउटसोर्स्ड है, सेकर सारा आउटसोर्स है, फार्म भी आउटसोर्स। सारा आउटसोर्स्ड है, हमने एक पैसा नहीं लगाया। यू आर अ ब्रांड बिजनेस। सो व्हेन यू सेड कि पैसा कहाँ से आता है, अगर आप एंटरप्रेन्योर हो और आपको पैसा बनाना है, आपके पास पैसा नहीं है और आपको स्केल करना है, तो इनिशियल अगर आपने जर्नी कर ली है, सो फ्रेंचाइजी इज अ वे टू गो, राइट। देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु विल वांट टू इन्वेस्ट इफ यू कैन गिव देम अ बिजनेस आइडिया। तो हमारे लिए फंड रेज, सो हमारे कंपटीशन ने ऑलमोस्ट 20-25 करोड़ रेज किया और कर रहे हैं, और उसने उससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट किया है, हमने वो उससे बिना भी किया है, तो हमने भी किया है। आज हमारी सारी इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉस्ट करीब
40-50 करोड़ के आसपास की है, बट वो हमारे पार्टनर्स ने किया हुआ है एंड आई विल मेक श्योर दैट दे आल्सो थ्राइव, राइट। हम आगे फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, हैदराबाद, कोलकाता हम ऑलरेडी शुरू कर रहे हैं और पूरे इंडिया में हम फ्रेंचाइजी अब देंगे पूरी सिटी की। तो आप कह रहे हो कि इन्वेस्टर के पैसे की बजाय मैं फ्रेंचाइजी बना के बिजनेस को ग्रो कर सकता हूँ, पार्टनर्स बना के। और आज के डेट में हमारी आने वाले टाइम में हमारी वर्किंग कैपिटल साइकिल माइनस हो जाएगी, मतलब हमें पैसा पहले मिलेगा और हमें बाद में देना होगा। So a lot of advantages of franchisee business, and that is a way to grow without VC capital also. एंड और आप अगर एक स्केल पे आ गए हो तो SME IPOs हैं, बहुत सारे और भी तरीके हैं बाय द वे पैसा रेज करने के। ऑफ कोर्स स्टार्टअप्स को बैंक पैसा नहीं देता, अगर आपने थोड़ी लेगेसी बना दी है जो हमने बना दिया है तो आज हमें बैंक्स दे देते हैं, बट अगर आपको नहीं दे रहे हैं तो आपके ऐसे बहुत सारे रूट्स हैं जो आप अगर एक अच्छा ब्रांड बिजनेस बना सकते हो तो आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। वैसे मैं ना आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि अपन यार अभी ना आई वॉज लिसनिंग टू सबीर भाटिया, एक अभी पॉडकास्ट पे मैंने सुना था, मेरे को याद नहीं किसका था, तो उस पॉडकास्ट पे सबीर भाटिया ने यही बोला कि भैया इंडिया में ना VCs नहीं बचे अब, क्योंकि सब प्रॉफिटेबल धंधे ढूंढ रहे हैं। तो अगर आपको प्रॉफिटेबल धंधा ही बनाना है तो फ्रेंचाइजी राउट से एक्सपैंड करो और IPO करो ना। वाई डू यू नीड VCs in the country? And this is the path that you are also treading to. आज हम IPO से कितना भी पैसा रेस कर सकते हैं। Yes, if you are building a profitable business, public will fund you. हम कहते हैं थोड़ा और टाइम है, so we want to raise it at 200 करोड़ sort of हमारा नंबर है हमारे माइंड में, बट अगर नहीं हुआ, हमारे फ्रेंचाइजी से नहीं आया तो हम IPO कर लेंगे। आज की डेट में IPO जर्नी इज सो इजी, अगर आप एक प्रॉफिटेबल थोड़ा स्केलेबल धंधा बना चुके हो तो IPO route is also a possible route to do it. No, I think I was hearing this recently. IPO की बात कर रहे हो आप, वो जो डीलर था पता नहीं कि सोनी मोटर्स, राइट, दैट्स व्हाट टीम वाज सेड, यामा का एक डीलर जिसने 2 डीलरशिप ले रखी है यामा की, उसने दो डीलरशिप पे IPO रेस किया है अभी, एंड इट वाज 130 टाइम्स आई थिंक कुछ, आई डोंट नो, बट वो इतना ओवर सब्सक्राइब्ड है। तो भाई IPO इज द वे टू ग्रो, एंड देन ही माइट ओपन 20 मोर डीलरशिप्स। अमेजिंग। सो अनु, आई थिंक ग्रेट। मुझे ये बताइए, एक फाइनल क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वो अनु जो कि पापा की नहीं सुनना चाहता था, अपना खुद का बिजनेस बनाना चाहता था, उसने कहा कि मेरा एक ही गोल था बिजनेस में कि बहुत पैसा कमाना है, राइट, मेरे को वो वाला लाइफस्टाइल जीना है जहाँ पे मैं जाके टैग नहीं देखूँ, कहीं भी जाके रहूँ और 40 पे रिटायर हो जाऊँ। उस अनु का आज क्या गेम है? वो तो मर चुका है। रियली? नया अनु है जो ऐसा नहीं सोचता है। कैसा सोचता है? मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है और तुझसे भी पूछा है कि पावर, फेम, मनी में आपको क्या चाहिए लाइफ में। यस, बताइए। तो मैं बहुत सालों से इसको सोच रहा हूँ, ढूंढ रहा हूँ और मुझे सभी अच्छे लगते हैं। तो मुझे लगता था जब पैसा होगा ना लाइफ में, टैग दे के शॉपिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो बस सुकून है, हैप्पीनेस है। जब वो आ गया तो हैप्पीनेस नहीं आई, राइट। एंड आई रियलाइज यार बिना टैग के भी शॉपिंग कर लेता हूँ, बट मुझे अच्छा ही लगता है। मुझे नहीं लगता कि 4 लाख की घड़ी पहन के मुझे कुछ बहुत खुशी मिलती है। तो लगता है अब नॉर्मल घड़ी तो टाइम ही दिखाती है, तो उससे भी है तो मेरे लिए बढ़िया है 40,000 रुपये की। और आपके पास है, अगर आप ढंग से सोचेंगे, आपको एक अच्छी बिना टैग देखे हुए शॉपिंग करने वाली ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते। हमारा ये फ्लॉड कॉन्सेप्ट, और मेरा ये पहले फ्लॉड था कि मुझे ना हज़ारों करोड़ कमाने वो ज़िंदगी जीने के लिए, बट ऐसा बाय द वे होता नहीं है। मुझे लगता है ऐसा कि 5 से 10 करोड़ के बाद अगर आप कमा चुके हो या कमाने का पोटेंशियल आपके पास उसकी वेल्थ है, आपको हर ज़ीरो ऐड होने के बाद आपकी खुशी उतनी मल्टीप्लाई होती नहीं है। रियली? 10 करोड़ इज द गोल? तो मैंने बहुत लोग से पूछ लिया, और उन लोगों से जो ये कर चुके हैं और सब जो कर चुके हैं, उन्होंने मुझे सिर्फ सेम जवाब दिया, यही जो मैं आपसे बता रहा हूँ। तो मुझे अब ऑब्वियसली वहाँ तक मैं आज रियल वैल्यू में तो नहीं पहुँचा, पेपर वेल्थ है या बुक्स में है, बट उतना है कि मैं टैग बिना देखे शॉपिंग कर सकता हूँ, बट उसके बियॉन्ड मुझे अब खुशी नहीं मिलती। तो मैंने H&M की 300 रुपये की टी शर्ट पहनी अब तो पहले मैं बहुत अच्छी लेता था, फिर मैंने कहा पहननी तो है, तो त्याग दिया वो, तो मुझे उसमें खुशी नहीं मिलती। और ये रिफ्लेक्शन कब आया और कैसे आया? मतलब बिकॉज यू वर वेरी डिफरेंट। आई थिंक ओवर द जर्नी ये एंटरप्रेन्योरशिप ने कर दिया, यू नो। पहले था कि पैसे कमाना, जब पैसे कमाने शुरू करे थोड़े से स्ट्रगल के बाद, तो अच्छे कमाए, जब कमाए तो खुशी नहीं हुई, जब खुशी नहीं हुई तो मैंने कहा अच्छा अब किससे मिलेगी,
तो लोग बोलते हैं फेम से मिलेगी, तो फेम के पीछे भागना शुरू कर दिया। तो फेम किया, हमारा हार्वर्ड में, इकोनॉमिक टाइम्स में, मेरा फेसबुक के सामने एक बहुत बड़ा कैंपेन किया, उन्होंने हमें फेस बनाया था अपना। तो इंडिया के आई थिंक 400 प्लस बिलबोर्ड्स पे फ्रंट हम थे। कोई भी ऐसा इंडिया का न्यूज़पेपर नहीं है जहाँ पे फेसबुक ने फ्रंट पेज पे हमें नहीं दिया था। तो फेम आ गया, मैं जाता था, लोग कहते ओ अनु, ओ मैंने आपको देखा है। तो मैंने कहा यार किससे खुशी मिलेगी मुझे, यही तो चाहिए था। बट जब वो हो गया तो मैंने कहा यार इससे भी खुशी नहीं मिल रही, बल्कि और गलती है। मैं जब नाइसा के साथ जा रहा हूँ मुझे सुकून चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कोई आए मेरे पास। तो मैंने कहा यार ये तो नहीं है, पावर चाहिए होगी। हाँ, because I saw you making some content also in the middle, but now you've dropped that also. I have again started a platform called CEO_Gardener, CEO Gardener, जिसमें मैं एक CEO की और एक गार्डनर अपने जो मैं हूँ उसकी जर्नी उसके थ्रू बताना चाहता हूँ उन गार्डनर्स को, या उन स्टार्टअप्स या But fame तो आपने त्याग दिया. त्याग। अब मैं फेम के लिए नहीं कर रहा वो, अब मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे वो नॉलेज ट्रांसफ़र करनी है। क्या मैं उन गार्डनर्स 2 मिलियन गार्डनर्स को बना सकूं, उसके लिए करनी है, फेम के लिए नहीं करनी। पावर के लिए बोला, पावर भी आ गया, पावर ट्राई किया मैंने, क्या पावर होना चाहिए। तो जब अपनी टीम चला रहे हो, आपके पास है तो पावर भी है, हो या इसको और बड़ा करते हैं। मुझे उसमें भी नशा नहीं आया, इनिशियली आया, बहुत अच्छा लगा, फिर मैं लगा यार पावर के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी आती तो है ना। तो इसलिए मैंने मनी, पावर, फेम को अब मुझे अहमियत नहीं है। मेरे लिए एक और चौथा वेरिएबल आ गया है जो है हैप्पीनेस। सुबह नाइसा को नहलाना या रात को एग्लो के साथ खेलना। Your new dog, by the way, introducing Eglo. Yeah, She is the sister of Naisa. family is complete. Yes, the family is complete. तो we said इससे खुशी मिलती है मुझे, अपने टेरेस गार्डन में जाके तुरई को उगते हुए देख के खुशी मिलती है। मुझे वर्ल्ड ट्रैवल करके खुशी मिलती है। तो जिससे खुशी मिलती है अब मैं उसकी तरफ ज़्यादा जा रहा हूँ, कंसिडरिंग कि मुझे अपना विजन भी करना है, जो हमने अपने आप से मैंने वादा किया है, मैंने अपने लोगों से वादा किया है कि हर घर there should be one plant, we should sell 300 million plants in India per year and that should be the aim, bare minimum हमें वहाँ पहुँचना है। और फिर जब वो कर दिया तो इंडिया से बाहर जाना है, तो 196 कंट्रीज़ में जाना है, तो 1 के बाद सेकंड श्रीलंका एंड देन इंडिया, US एंड देन 196 कंट्री तक जाना है। तो वो विजन भी है, वो आग भी है, वही मुझे रात को सुबह 14 साल बाद भी इट्स डे 0 फॉर मी। मुझे उतनी ही एनर्जी है आज जो मुझे जब 23 साल का एक लौंडा लखनऊ का पास बिना किसी बड़ी डिग्री के कर रहा था, वो एनर्जी, वो पैशन, वो परसिवरेंस तब भी था और आज भी उतना ही है। आई थिंक वो उस विजन से मिलता है मुझे। बट मुझे लगता है कि खुशी है, अगर मर गए डेथ बेड पे और ये कहा कि यार लाइफ एंजॉय नहीं करी तो क्या फ़ायदा। मैंने नाइसा को अपने आँखों के सामने बढ़ते हुए देखा है, मैं नहीं पला उसमें, क्योंकि मेरे डैड बिजी थे बिजनेस बनाने में और उसको बड़ा करने में। तो जब वो आते थे तब मैं सो चुका होता था, जब वो उठते थे मैं जा चुका था स्कूल। तो मैंने कई हफ्ते उन्हें नहीं देखा है। बट ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैंने नाइसा को सुबह उठ के नहलाया नहीं है। We do all that. Duty of work from home. Yeah. Yes, and I love it that way. तो और क्या चाहिए लाइफ में, राइट? मतलब क्यों जी रहे हैं? Absolutely. Wow, what a segue towards spirituality suddenly. But I think since we are over time, we will have to end. Possibly we'll do more conversations in larger forums. larger. Absolutely. But good to have you. Yes. Cheers. Thank you so much. Yeah. बड़ी अमेजिंग रही है अन्नू की जर्नी, कैसे हाउ ही फॉट विद हिज फादर, हाउ ही बिल्ट अ बिजनेस, हाउ ही स्ट्रगल्ड एंड फाइनली he realized that he's transformed himself into a very different human who's not chasing money anymore but rather chasing happiness. I hope आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। क्या पोर्शन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो ज़रा कमेंट में बोलो और अपने दोस्तों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार, बढ़ाओ, स्टार्टअप्स बढ़ेंगे।